سیکشن کی, اور یہ وہ شخص تھا جو اس کا انگریزی بریف دیتا تھا بشپ کو, اگر آپ کو یہ بات نہیں پتا تو. لیکن اس وقت یہ قادیان میں نہیں رہتا تھا, یہ اس کی کتاب کا بریف دیتا تھا. تو مولوی عبد الکریم نے یہ جو لکھتا تھا وہ بتا دیتا تھا بشپ کو, بھائی اس نے یہ لکھا ہے. پھر جب اس نے اپنے عقائد ٹھیک کر لیے, اسلام کی طرح کے ٹریڈیشنل عقائد پر آ گیا, تو پھر مولانا محمد حسین بٹالوی نے اس کے لیے اپنے اخبار میں ایک ریویو شائع کر دیا, جو بڑے بڑے اچھے لفظوں میں کہا کہ یہ ہے وہ ہے, حالانکہ وہ تھا نہیں مرزا. یہ ایسے ہی ہے, اپنے یار کے پاس چلے جائیں, اس کو کہیں بھائی میرا نوکری واسطے ریفرنس دے, پر نہیں زبردست. تو مولانا محمد حسین بٹالوی نے دے دیا. پھر مولانا محمد حسین بٹالوی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کہا دے دے یار, پاگل تے پہلے ہی آ گئے. تو انہوں نے لکھ دیا کہ اب تو اس کے عقائد. اسی لیے آج بھی براہین احمدیہ کے حصہ اول سے حصہ چہارم تک جو قرآن کا ترجمہ ہے تو غلط بھی ہے, لیکن جو ان جنرل ہے وہ اسلام کی طرف ڈومینیشن ہے اس کی. اس کے بعد کی کتابوں میں سب کفر اس نے شائع کرنا شروع کر دیا, وہ بھی دوسروں نے لکھ کے دیا. اس کے بعد 1884 میں اس کی نبوت کنفرم کر دی انگریزوں نے. 2 آدمی تھے انگریزوں کے نام پر, ایک ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور ایک بشپ تھا. مہاراجہ کشمیر, پھر انگریزوں نے کہا کہ اس کے گرد ایک گروپ اکٹھا کرو, جیسے آپ واٹس ایپ کا بنا لیتے ہیں, جو اس مقصد کو آگے بڑھائے. اس کے لیے انہوں نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا. تو مہاراجہ کشمیر نے کہا میرے پاس ایک شخص ہے, انگریزوں کو کہا, مرزے کو نہیں کہا, وہ اسلام جانتا ہے اور مکہ مدینہ سے پڑھ کر آیا ہے. اس نے 6 مہینے گزارے تھے مکہ مدینہ میں. یہ حکیم نورے نے, یہ عربی زبان بھی جانتا تھا اور تھوڑا بہت اسلام کا بھی علم, لیکن تھا بڑا خبیث شخص حکیم نورا, آکڑ والا. اس کو مہاراجہ کشمیر نے کہا بھئی تو مرزے کے پاس چلے جا, اس کو بتا کہ کیا کام کرنا ہے, مقصد کیا ہے. تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ جی میں تو آپ حکیم ہوں. میں پھر جب اس کو دوبارہ کہا گیا تو اس نے کہا میں پہلے اسے خط لکھوں گا. حکیم نورا اسے خط لکھتا تھا کشمیر سے, اور اس نے خط, ایک جو مشہور خط ہے جو ان کی اپنی کتاب میں شائع ہے, اس ایک خط نے اس کو کہا کہ آپ مسیل مسیح کا دعویٰ کر دیں. بھائیو بات یہ ہے کہ جب اس نے نبی نہیں بننا تھا اور ویسے ہی اس سے خط و کتابت ہو رہی تھی, تو کوئی شخص کیوں خط لکھے گا مرزے کو کہ تو مسیل مسیح کا دعویٰ کر, کیونکہ ایجنڈا ہی یہی تھا. 1876 کی جو گول میز کانفرنس تھی اس میں کہا گیا تھا کہ پیر یا نبی کھڑا کرنا ہے. جب ایجنڈا یہی ہے تو 1882-83 میں جو بھی خط لکھے جائیں گے اسی ایجنڈے پر ہوں گے. تو وہ لکھ دیا اس نے اس کو خط. مرزے نے جواب میں کہا بھئی میں مسیل مسیح نہیں, میں تو بڑا مسیح بننا ہے. وہ کہنے لگا میں کوئی مسیل کا دعویٰ نہیں کرتا, میں تو پورا بنوں گا. تو خیر جب یہ خط و کتابت ہوئی, اسی دوران میں یہ آیا محلہ خان یار میں ایک قبر جس کے بارے میں کوئی بزرگ دفن ہے, عبداللہ نامی ایک شخص نے خط لکھا, اور مرزے نے جناب اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنا دی. اور حکیم نورے نے کہا بنا دے کوئی گل نہیں, کیونکہ حکیم نورے کو ایک کہانی پتا تھی. وہ کہانی یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے اور بادشاہ بھی تھے, 12 قبیلے تھے یہودیوں کی. ان میں سے 8 قبیلے, جہاں تک مجھے یاد ہے, ہو سکتا ہے یہ نمبر ٹھیک نہ ہو, کچھ قبیلے جو ہے الگ ہو کر چلے گئے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہی تھی, اور جس نبی نے یہ کہا تھا اس کا نام جرمیہ بتایا جاتا ہے. اور کہانی ایسے جاتی ہے کہ وہ قبیلے جو تھے وہ مائیگریٹ کر کے انڈیا کی طرف آ گئے. اور یہ کہانی لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت ایک پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو بات لکھی ہوئی ہے گائے کے قربانی اور سامری کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, آپ دیکھ لو کہ وہ پیلے رنگ, گیروے رنگ کی گائے تھی, پیلے تو نہیں, سرخی مائل پیلا رنگ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. کہتے دیکھ لے آج بھی
गाय की पूजा इधर होती है उन कबीलों, क्योंकि सामरी के मानने वाले इंडिया में आ गए, गाय की पूजा करते हैं और गेरवे रंग को मुतबरक रंग करार देते हैं। और बहुत से उलमा इस्लाम हैं जिन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक लगती है कि उनमें से कबीले इधर आए। ये बात पता थी हकीम नूरे को। हकीम नूरे ने मिर्जे से कहा, पुत्र गल कोई नहीं हैगी, यह कहानी बड़ी पुरानी है, तू कह के नाल ईसा अलैहिस्सलाम भी आ गए। इसलिए मिर्जे ने महल्ला खान यार में कहता है कब्र भी मौजूद है, कहानी भी मौजूद है, तो बस तू शाम इराक फलस्तीन छड़ दे, जरा लंबा फासला तय करा। तो ये है उस फ्रॉड की दास्तान। तो इसी तरह हकीम नूरे के बाद उन्होंने मौलवी अब्दुल करीम, जो ब्रीफ पहले तो मिर्जे की लिखी हुई किताबों को ट्रांसलेट करके उसका बताता था बिशप को और डिप्टी कमिश्नर को, फिर उन्होंने कहा कि पुत्र हम तुझे जानना है मिर्जा कौन है, जा इनू जाके दस के की लिखना है। तो उसके बाद जनाब मकसद तो यही था कि इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदल दिया जाए। तो उन्होंने ऐसी ऐसी खराफात गढ़ी, 30 मुसलसल अहादीस में जो सही है और तवातर फ़िक़्ह के मुताबिक उसकी सनद कुरान तक पहुंच जाती है अगर तवातर से हो। उनमें लिखा है यसाल जजिया के लफ्ज़ हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जजिया माफ़ करेंगे। बिरद मुर्तद ने आके मौलवी अब्दुल करीम के कहने पर इसको जज़ाउल हरब कर दिया कि जंग नहीं लड़नी, क्योंकि मकसद ये था कि उस वक़्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ जंगें ना हो। फिर उसने, मैं आपको बेशुमार हवाले दे सकता हूँ जिनकी तहरीर भी मुख्तलिफ है, दावे भी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि लिखने वाला मिर्ज़ा मुर्तद ही नहीं, हकीम नूरा है, काजी यार मोहम्मद है, सादिक नामी वाहियात शख्स है, और मौलवी अब्दुल करीम है, ज़हूरुद्दीन अकमल है। मुख्तलिफ लोगों ने जहाद के ख़िलाफ़ दिल भर कर लिखा और वो सब मिर्ज़े ने अपने नाम से छाप दी। मैं आपको मिर्ज़े की तहरीर दिखा सकता हूँ। मिर्ज़ा कहता है मैं दूसरों को ठीक करने के लिए भेजता हूँ, वो उसका सब कुछ ही बदल देते हैं। और कभी कभी वो इसरार करता था, नहीं मैंने जो लिखा है वो मैं छापूंगा, फिर आपको नियोग मिल जाता है, फिर आपको नमाज और जना की मुशाबत मिल जाती है। ये मिर्ज़े की तहरीर है। जो शायरी आपको मिलती है ना, आपको मिर्ज़ाई सुनाते हैं कि जनाब मिर्ज़े की शायरी, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर में है यही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरों में खूब तर है, खूबी में एक कमर है, लेकस खुदाए बरतर, खैरुल वरा यही। मैं कहना मिर्जा मुर्तद पूरी जिंदगी मिर्जा गुलाम मुर्तद बैजत है शेर नहीं लिख सकता। ये शेर लिखा काजी ज़हूरुद्दीन अकमल ने। हमने मिर्जे की हर किताब कंप्यूटर पर डाउनलोड किया। इस नज़म को मैंने बार बार कंप्यूटर पर अपलोड किया। मैंने कहा बताओ ये किसकी है, हर बार वो कहता था ज़हूरुद्दीन अकमल की। इस बहर में और इस काफिया रदीफ में मिर्जे की औकात ही नहीं कि कोई नज़म लिख सके। और इसी तरह जो नज़में ये अपने नाम पर मुद्दा जानी भी जो काना था वो और मिर्जा कादियानी छापते रहे, दूसरों की लिखी हुई है। मिर्जे का शेर आपने असली सुनना है तो सुन लो। उसने नुसरत जहां के बारे में लिखा, 10 से करवा चुकी है जना लेकिन, वो लिखता है 10 से करवा चुकी है जना लेकिन पाक दामन अभी बेचारी है। अब देखें ना, इसमें काफिया ठीक है ना रदीफ ठीक। और उसने 10 का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि मिर्जे ने अपने घर में 10 लोग रखे हुए थे और वो नियोग एक रस्म थी बाज हिंदुओं में, सारों में नहीं थी। वो जिस औरत के बच्चा नहीं होता था वो दूसरों को बुला लेते थे। अब मिर्जा तो हमें पता है कि खुसरा था, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मिर्जे का कोई भी बच्चा हो सकता। ये सब फिर उसने 10 नियोगी रखे हुए थे, 10 बच्चे 10 नियोगी, उसके घर 10 ही बच्चे हुए। हो सकता है किसी और ने भी कंट्रीब्यूशन दी हो, तो कोई मिर्जाई आ जाए तो हमसे पूछे, सबूत मांगो एक एक लफ्ज का, इसकी सारे की रिकॉर्डिंग करो और दूसरों को सुनाओ और बार बार सुनो। हाँ जिया भाई वो बहुत हो गया। जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से आपने इनके हक़ाइक़ बयान किए हैं। अल्लाह ताला आपकी काविश को कबूल फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ना मैंने आपसे कहना था कि वो यूट्यूब के प्रोग्राम भी स्टार्ट करने का इरादा है,
तो फिर मैं भी आप भी जरा वापस जा रहा हूँ यूट्यूब पर, आ जाएंगे, बिल्कुल हाँ आएंगे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म जो है हाँ ज्यादा बेहतर लोग आते हैं, यहाँ तो गाली बाज बहुत आते हैं। हाँ जी, ऐसे ही। चलो इंशाल्लाह फिर आपको हम इनवाइट करेंगे, हाँ बस हाँ, ज़हनी बस तौर पे। जब आप कहेंगे इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो बहुत ठीक है सारी बातें हैं, वो भी हम करेंगे। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाँ जी बाबर भाई, की हाल चाल है? यूसुफ भाई आप बैठे हुए हैं, क्या हाल चाल है? हाँ वालेकुम भाई, सलाम मुझे बाबर। छोटा कर दें आप जरा। नहीं, बड़े ठीक हैं आप। अस्सलाम नहीं नहीं, मैं वालेकुम थोड़ी देर में जाऊंगा मेरी मीटिंग में। ज़िया अच्छा भाई, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब को कोई छोटा नहीं कर सकता, अल्लाह ने इन्हें बड़ा किया है, आपको भी। क्या हाल है भाई? ज़िया भाई ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। लगता है कहीं टूर पे जा रहे हैं। जी मैं जर्मन गया हुआ था, फ्रैंकफर्ट, वहाँ से लोडिंग की है तो अब वापस आया हूँ, इटली पहुँच गया हूँ। यहाँ उतारना है आज सामान। कितना लंबा सफर बन रहा है? जी, मतलब कितना लंबा सफर बन रहा है? ये वैसे पिछले हफ्ते गया था, इतवार को चलाना मना होता है। 3 जगह उतारा सामान, स्टुटगार्ट एक जगह वहाँ, एक उलम है, उल्म ULM उल्म, तो वहाँ तो फिर फ्रैंकफर्ट उतारा 3 जगह, और फ्रैंकफर्ट से लोड किया है हफ्ते के दिन। तो इतवार को चलाना मना है, तो आज सुबह चला हूँ तो आ गया हूँ। वैसे सीधा सीधा चलते जाएं तो 2 दिन लगते हैं फ्रैंकफर्ट के, यहाँ से, इटली से। हाँ जी। चलो अल्लाह ताला खैर से पहुंचाए। जी आमीन बाबर भाई। आमीन, आपको भी खैर रखे आपको। आपको पूरी इजाज़त है, जो मर्जी अपलोड करें, माशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, फिक्र ना करें। हाँ जी। क्या वो जुनूनी के नाम से है यूट्यूब पे? अच्छा बाबर, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ठीक हो गया। बाबर भाई, आप किस जगह हैं, किस मुल्क में हैं? UK, अच्छा, लंदन में या किसी और शहर? अच्छा अच्छा, मैनचेस्टर। मैं इटली। सॉरी सॉरी, ये मोहम्मद साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़िया भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं जी, ठीक ठाक है? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। माशाल्लाह। सही भाई, काफ़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मैंने अभी इनको थोड़ी देर पहले सुना था एक दूसरी ब्रॉड पे। तो मुझे नहीं पता था कि शायद वही है, मैं दोबारा कंफर्म कर लूँ कि
سعید بھائی پہلے قادیانی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، نہیں نہیں، وہ بھی کوئی اور تھے. کوئی اور ہوں گے. ویسے سیم ایکچولی نا اس کی وہ ٹی پی بھی شاید تھوڑی سی ملتی ہوتی تھی. وہ کوئی اور ہوں گے. وہ کوئی اور ہوں گے. ہو گئے بس ان لوگوں کا بعض دفعہ نا انسان ایسا لگتا ہے جیسے ان لوگوں سے بات کرنے کا مطلب ہے بھینس کے آگے بین بجانے والا کام ہے. آپ جو مرضی باتیں کر دو، جو مرضی سامنے رکھ دو، وہ نہیں سمجھ رہا انہوں نے. ان کو بس ایک ہی شاید چیز پہ پھنسے رہتے ہیں کہ رسول اللہ اگر آخری نبی ہیں، کدھر لکھا ہوا ہے تو آخری ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ کیسے آئیں گے؟ تو وہ آخری ہوئے، پھر تو یہ آخری ہوئے. ان کی جو بریکیں لگتی ہیں نا وہ صرف جا کے حضرت عیسیٰ پہ جا کے لگتی ہیں کہ اچھا جی اگر وہ آخری تھے تو پھر وہ پھر کس طرح آخری ہوئے. آپ جتنا مرضی پٹ جاؤ ان کے آگے، جو مرضی بتا دو کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی نبوت مل رہی ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا کذاب آ کے کہے گا کہ جی میں حضرت عیسیٰ ہوں اور ہم مان جائیں گے. تو اب ان کی جتنے مرضی لوگوں کے ساتھ جس طرح ایسے لگتا ہے جس طرح یہ تو ہدایت کے اوپر جو ہے نا ان کے دلوں میں مہر لگ چکی ہوئی ہے. آج میں نے ایک لفظ انگلش میں تھا، اصل میں شہادہ لی جا رہی تھی کسی غیر مسلم سے. تو وہ کسی یورپین کنٹری میں تھے، تو وہاں پہ شہادہ لی جا رہی ہے، تو اس میں انگلش کے اندر بھی ان سے کہا جا رہا ہے. اور آخر میں جب انہوں نے اشہد ان لا یعنی کہ جب انہوں نے عربی کا پڑھ کے آخر میں جب انہوں نے انگلش میں کہا تو انہوں نے لفظ استعمال کیا فائنل میسنجر. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا ورڈ کہ فائنل، یعنی کہ یہ جو ایون کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو کہہ لیں کہ تھپڑ ہے ان لوگوں کے منہ پہ بھی کہ جو لاسٹ کے پیچھے وہ ڈالتے رہتے ہیں نا، شور میں چاہتے رہتے ہیں کہ جی لاسٹ آخری کدھر لکھا ہوا ہے. یہ لفظ جو فائنل ہے وہ حتمی میسنجر تھے. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا کہا گیا ہے تو وہ حتمی تھوڑی تھے، وہ تو آلریڈی ایک میسنجر تھے، وہ ان کو آلریڈی ایک نبوت مل چکی ہوئی تھی. تو ورڈ فائنل ہے وہ کافی حد تک آپ کی جو چیز کو نا لیکن آپ ان کے آگے بھی جو مرضی رکھ دو کہ وہ اس کے اندر بھی نہیں مانیں گے. مرزا کی جو شیطانی ہے، میں لفظ یہی کہوں گا کہ آپ ایک عام آدمی تو نہیں یعنی کہ کوئی عقل والا آدمی ہوگا تو وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی عقل نہیں مانتی ان کی باتوں کو. ابھی جو انہوں نے شاعری پڑھی ہے، مجھے وہ شاعری واقعی اگر یہ شاعری مجھے دوبارہ میں تھوڑا یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10 کیا لفظ تھے بلا کہ کسی بھائی کو یاد ہو؟ 10 سے کروا چکی زنا ابھی پاک دامن بیچاری ہے. اور یہ کیا نبی کر سکتا ہے کسی عورت کے بارے میں؟ یہ کسی کو کر سکتا ہے؟ پھر اسی پاک دامن عورت کے لیے تو مر چلا تھا شادی کرنے کے لیے. اور یعنی کہ نہیں، یہ ہندوؤں کے بارے میں لکھا ہوا. اچھا یہ ہندوؤں کے بارے میں لکھا ہوا تھا. اور یہ کس عورت کے بارے میں کہا تھا اس نے؟ کسی خاص کے لیے نہیں، بس جنرلی ہر عورت کے بارے میں. اچھا جنرلی ہر عورت کو زانی کہہ دیا اس نے. واہ. ہاں جی، ہندوؤں کی ہر عورت ہی اس طرح کی ہوتی ہے، یہ کہہ رہا تھا. یعنی یہ کیسا نبی ہے کہ 10 سے کروا چکی ہے زنا ابھی بھی پاک دامن ہے بیچاری. واہ. یہ تو کیا کہتے ہیں کوئی محلے کا اوباش بندے ہو نا وہ اس قسم کی شاعریاں یا حرکتیں کرتے ہیں تھرڈ کلاس. ہاں بالکل، یہ تھرڈ کلاس سے بھی آگے. یہ اباش ہی تھا، اس میں کیا فرق ہے؟ اس سے بھی بڑھ کے. اسی لیے تو کسی کے پیچھے پڑ گیا تھا. ایک عورت ہے، ایک کیا کہتے ہیں اپنی عمر دیکھو، اس کی عمر دیکھو، وہ نہیں کرنا چاہتی تم سے شادی، اس کے گھر والے نہیں کرنا چاہتے تم سے شادی، تم تھریٹ کر رہے ہو اس کو، تم اس کو دھمکیاں دے رہے ہو، کبھی تیرا باپ مر جائے گا، کبھی تو مر جائے گی، تیرا بندہ مر جائے گا، اتنے مہینے میں مر جائے گا. اور رو رو کے بھی ناکام عاشق. اصل میں ان کو ناکام عاشق ہی کہتا ہوں کہ کوشش کر لی ہے پوری کسی طریقے سے کہ وہ عورت مل جائے. ویسے اس میں لے کے بھی کرنا کیا تھا؟ ویسے تو مجھے خود نہیں سمجھ آتی. اس نے خود اپنے وہ مولوی بشیر تھا کہ وہ کون تھا جو مولوی نہیں، نور جی، حکیم نور الدین، نور جی. اس کو لیٹر لکھا ہوا ہے کہ جی میں جب میری شادی ہوئی تو مجھے لگا کہ میں نامرد ہوں، تو
اب اس سے دعائیاں مانگ رہا تھا، کر رہا تھا. اس سے پہلی شادی کی کیا کہتے ہیں حالت نہیں ٹھیک کی گئی، تو اور شادیاں کر کے کیا کرنا تھا؟ ہاں یہ ہائیڈرالک سسٹم ہی خراب ہے، پتہ نہیں کی کرنا سی نے. کوئی بھی سسٹم نہیں ٹھیک نہ کیا کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میرے کپڑوں سے بادشاہ بھی شفا ڈھونڈیں گے. تو میں نے کہ ایک بندے سے کہا، میں کہ بادشاہ کو تو رہن دیتا شفا ڈھونڈنے کے لیے، اپنی تو شفا کر لیتا نا اپنے کپڑوں سے. نہ اس کو کیا کہتے ہیں سر کی بیماری کا کوئی علاج ہوا ہے، نہ پیچس کی بیماری کا کوئی علاج ہوا ہے. باقی بھی اور امراکہ اور کیا کیا سے اس کے بیٹے نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو کیا کیا حرکتیں ہوتی تھی. تو بے شمار بیماریوں کی ایک لسٹ تھی ان کے پاس، تو اپنے کپڑوں سے اپنا علاج تو کر لیتے. مرزا صاحب نے تو اپنا علاج بھی نہیں کر سکے، اور پھر اوپر سے کیا کہتے ہیں کسی اور کی عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. یہ کیسا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی کیسا نبی ہے یہ. پھر آگے سے ان کو شرم نہیں آتی تو آگے سے مثال دینا شروع ہوتے ہیں اما عائشہ کی کہ جی ان سے نہیں انہوں نے کیا. منحوسو وہ اس طرح پیچھے بڑھ کے کہا تھا کہ جی میں نے کرنی ہے، ادھر کرنی ہے. اچھا کرتی ہے اس کے باپ نے کسی اور جگہ، تو میں نے پھر بھی کرنی ہے. وہ اس کو یہ ہو جائے یا فلانا. ہاں اس کی شادی کے لیے اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیا اپنی بہو کو. ایسا ظالم انسان. یہ سوری یہ دوبارہ بولیے. اس نے اپنے مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان سے کہو اپنی بیوی سے کہلواؤ کہ یہ میرے سے شادی کرنے ہیں ورنہ تم اسے طلاق دو. پھر اس نے شادی نہیں نہ جب ہوئی تو طلاق دلوائی تھی اپنے بیٹے سے. یعنی اپنی بہو کو طلاق دلوا دی. ہاں جی اپنے بیٹے سے طلاق دلوائی ہے اپنی بہو کو کہ یہ نہیں کرتی تو جا تم ہی کار. تو وہ ان کا وٹا سٹا تھا یعنی ان کا آپس میں؟ نہیں وٹا سٹا نہیں، اس کی جو بہو تھی ان کے رشتہ داروں میں تھی وہ لڑکی. حالانکہ مرزا قادیانی کی بھی رشتہ دار تھی، وہ سارے آپس میں رشتہ دار تھے. نے اس رشتہ داری کی کھلنے سے نکالنے کے لیے کہ اس کی بیوی جو ہے بہو یعنی وہ کنوینس نہیں کرتے اس لیے کو شادی کرے تو بیٹے جی کی جی تھی. اور اس میں جو 2.5 سال والی بچی کے ساتھ والا بھی ایک واقعہ تھا مجھے وہ ذہن سے نکل گیا شادی کروانے کے لیے. وہ نہیں مجھے اتنا پتہ، لیکن تھوڑا سا سنا ہوا میں. ضیاء بھائی بہتر جانتے ہیں. 2.5 سال وہ والا. اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، وہ بیٹا بیمار ہوا تھا تو کوئی اس نے 2.5 سال کا شاید بیٹا تھا کہ 1.5 سال کا، اور ایک 2.5 سال کی لڑکی تھی، اس سے شادی کر کے رخصتی بھی کر دی تھی. بھی ٹونا کیا تھا اپنی طرف سے تو کہ وہ بچ جائے گا مرے گا. بچ پھر گیا بھی بھی. مر گیا. نہیں پھر بھی مر گیا وہ. ٹونوں سے تو نہیں نا بندہ بچتا ہے اللہ کے کرم سے. یہ وہی تھا نا جس کے بارے میں کہتے تھے کہ جس کی وہ دعا کرتا تھا کہ جی اب یہ ایک پیشن گوئی پہلے کر دی تھی کہ ایک ایسا آئے گا تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے یہ کرے گا تو وہ کرے گا. یہ وہی تھا. ضیاء بھائی یہ وہی بچہ تھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ بچہ پتہ نہیں آگے جا کے کیا کرے گا، کوئی اس طرح کی کوئی پیشن گوئی کی ہوئی تھی. میرے تو علم میں ایسے ہے کہ جیسے یعنی کہ اس کی مجھے ویسے ابھی تک کوئی ایسی پیشن گوئی نظر نہیں آئی جو صحیح پوری ہوئی ہو. اس نے جس چیز سیٹ اپ پہ کیا نا، جس کو کہتا تھا کڑی ہوگا ادھر منڈا ہو جاتا تھا، جس کو کہتا تھا منڈا ہوگا ادھر. 2-3 پوری ہوئی ہیں اس کی، ساری نہیں غلط. وہ یہ کہ میں مکے اور مدینے میں مروں گا، لیکن یہ کنجر خانے میں مرا ہے لاہور کے، جہاں عورتیں ناچتی ہیں نا وہاں ان کا مکان ہے ابھی بھی خالی پڑا ہے، وہاں یہ مرا تھا. تو یہ تو کہتا تھا اگر میں سچا ہوا تو مکے مدینے میں مروں گا، تو وہاں نہیں مرا کیونکہ جھوٹا ہے. تو یہ پھر پیش گوئی ٹھیک ہوگی نا اس کی. اچھا یہ بھی ٹھیک ہے. یہ والی ٹھیک ہوئی ہے. پھر تو اس کو میں مان لوں گا. پھر تو پکا مان لیا میں. ہاں اچھا مکہ مدینہ تو حج کرنے نہیں گیا، تجھے ادھر بلایا نہیں ہے، تجھے پیشن گوئی کرنے سے پہلے سوچ تو لیتا کہ میں پیشن گوئی کیا کرنے لگا. تو جائے گا تو ادھر مرے گا نا. ہاں سوچتا ہوتا تو مرزا قادیانی کون کہتا. سوچتا ہوتا تو پھر اتنے سال اتنی عمر کبھی اپنے آپ کو میں مجدد ہوں، میں مسیح ہوں، میں جی مسیح ہوں، سارا کچھ. میں نبی ہوں. اور پھر
مجھے ایسا تھا کہ جیسے میں نبی نہیں ادھر ادھر لکھا ہے ادھر کاٹ دو نہیں 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 آپ میرا مطلب یہ نہیں تھا میرا مطلب وہ تھا جی جی کیا کیا ایک ایسی کھچڑی ہے نا ایسی عجیب کھچڑی ہے کہ آپ اس کی ان حرکتوں پہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں بندہ دماغی نہیں ہے بالکل ہلا ہوا تو پکا ہے نا. ایک اور ان کا واقعہ کوئی اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ مسجد میں تھے تو وہاں پہ ان کو وہ چیخ مار کے نا بے ہوش ہو گئے تو بعد میں جب اٹھے تو کہتے ہیں کہ ادھر سے ایک پھول تھا وہ نکلا تھا نکل کے نا اوپر کی طرف چلا گیا تو ساتھ ان کی بیگم نے لکھا ہوا ہے کہ جی پھر اس طرح کی پھول نکلا کہاں سے ہے؟ یہ نہیں پتا کہاں پھول سے نکلا تھا 18 وہ ان کا ایک ہے 18 نمبر شاید کہ 88 نمبر ہے اللہ. اچھا ہم 85 اس کو وہاں سے تو نہیں نکلا تھا. ہے وہ 85 ہے 85 ہاں وہاں سے نکلا ہے. پتا نہیں اس کا ادھر سے تو کافی نکلتا رہا تو آخری وقت تک بھی ادھر سے نکلتے رہا اچھا اچھا اچھا. تو کہہ لیں کہ میری حالت ہوئی ہے اسی اسی جگہ پہ پھر آپ دیکھیں یہ کیسا نبی ہے جو غیر محرم ہو اور کہ جی یہ میجے اٹھا کے مجھے وہی کی کہتے ہیں یعنی وہی آئے تو مجھے بتا دینا یعنی کہ اس کو کسی اور بندے کا چاہیے ہوتا ہے کہ جی وہ آ کے بتا دے کہ وہی آئی تھی اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کہتے ہیں مرزا صاحب جو ہے وہ یعنی کہ وہ خدا بھی ہے آپ کو میں نے کشف میں دیکھا میں نے خدا کا خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہوں یہ کیا کہو گے اس کے بارے میں خواب کی تو آپ کو حجت نہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر خدا کا خواب تو نہیں ہو سکتا یہ تو شیطانی خواب ہوگا کیونکہ خواب میں تو آپ کچھ کر سکتے اچھا آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے اور ڈوبی ہوئی آواز دور ہے مائک آپ کا قریب کریں ذرا. ہاں جی میرا بالکل پاس ہے اب ٹھیک ہے آپ بولیں. تو میں کہتا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں میں نے یقین کر لیا کہتے یہ تو خواب میں ہے میں نے کہا بھی اس کا مطلب ہے کہ خواب جو ہے وہ کہتا خواب کی تو حجت نہیں ہے خواب میں تو آپ کچھ بھی مجھے بتا دو کہ خواب شیطانی تھا کہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو تو شیطانی خواب ہوتا ہے اللہ تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ میں ہی بن جاؤں اور پھر یقین کر لو کہ وہ کیا کہتے ہیں تم خود نہیں ہو وہ بھی میں یعنی کہ اللہ بنا دیا تم نے تو ان لوگوں کو اس چیز کی کوئی یعنی کہ اس کے جواب دینے کی بجائے صرف یہی بولتے رہیں گے کہ وہ کون سا انہوں نے کیا کہتے ہیں خود دیکھا ہے یعنی یہ تو خواب کے اندر دیکھا ہے تو پھر اگر میں پوچھوں کہ پھر تم لوگ اللہ پہ ایک اور بہتان لگائے تھے وہ تو تم لوگوں کا وہ ہے یعنی الہامات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ تم میرے لیے ایسے جیسے میرا بیٹا ہو یعنی تم بمنزلہ میرے فرزند کے ہو نعوذ باللہ اور اللہ تعالیٰ جو کہ خود قل ھو اللہ احد یعنی وہ ہم پڑھیں تو لم یلد ولم یولد یعنی کہ اس کی خود نعوذ باللہ نفی کر رہا ہے کہ تم میرے لیے میرے فرزند کی طرح ہو اور پھر تم ہی ہو یعنی کہ نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہنا بھی تھا تو اس کو کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا بلکہ یہ بعد میں اس نے کئی جگہ پہ اپنے نام کے ساتھ نا احمد لکھ دیا ہوا ہے خالی اس کا نام غلام احمد بلکہ اس سے بھی پہلے بھی اس کا نام کچھ اور تھا اگر تو غلام احمد بھی تھا تو غلام تھا اس احمد کا تو وہ احمد کون تھا جس کا غلام تھا نام تھا دست بندی اس کا نام دست بندی تھا پہلے اصلی جو نام ہے ماں باپ نے رکھا تھا دست بندی وہ دست پھر اس لیے میرا حل ہے وہ بھی دست ان کے بند نہیں ہوئے ہاں وہ اسی لیے پھر وہ بند ہی نہیں ہوئے دست بند ہوئے ہی نہیں یہ بھی نہ دست بندی ہونا چاہیے ہاں انہوں نے تو نہیں 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 آپ دیکھیں قادیانی آپ کی بات کو مانیں گے نہیں ہاں کون سی والی دست بندی والی ہاں میں نہیں ابھی آپ کو بتائیں بتا گے دیتا ڈاکٹر ہوں ہاں اس کی جی وجہ بتائیں آپ بڑی بہتر کس نے بتانا ہے جو مرزا قادیانی تھا نا یہ ہاں جی اب ٹھیک ہو
मिर्ज़ा कादियानी बचपन से पागल था, ज़हनी मरीज़ था, इसको स्किज़ोफ्रेनिया था बड़ा ज़बरदस्त। तो मेरी 4 वीडियो हैं यूट्यूब पर, पागल पागल पागल। मैंने इसके सबूत कादियानियों और मिर्ज़े की अपनी किताबों और मॉडर्न मेडिसिन में से दिए हैं। तो एक दफ़ा ये आया, 9-10 साल का था या 11 साल का, ये इनकी किताबों में लिखा है कि घर आया तो भूखे नंगे ख़ानदान से था, ये कोई अमीर ख़ानदान क्या एवरेज ख़ानदान भी नहीं था, भूख 4-6 मरले का इनका घर था कादियान में। तो माँ ने कहा कि रोटी नहीं है, मिर्ज़े ने रोटी मांगी खाना, तो माँ ने कहा रोटी तो है, सालन नहीं है। तो मिर्ज़े ने कहा मैंने नहीं बगैर सालन के खानी। तो माँ ने कहा कि तू 4 नाल खा ले। वो कहता नहीं मैंने 4 से भी नहीं खानी। तो माँ को गुस्सा आया चिराग बीबी को, उसने कहा स्वा नाल खा ले। तो उसने गोबर की राख उठाई, रोटी पर रखी और रोटी खा गया, सारी पूरी रोटी खा गया गोबर की राख के साथ। ये एक मिसाल है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं इसकी ज़िंदगी में। तो ये जैसे चिड़ियाँ पकड़ता था बाहर जाकर, यही 8-9-10 साल की उम्र में, और उनको सरकंडे से उनको ज़िबा कर देता था, ये इसकी हरकत थी। फिर कादियान के गिर्द एक पडल, जिसको छप्पड़ नहीं कहते पंजाबी में, तो वो था जहाँ पर लोगों का पखाने का पानी और इधर उधर जाता था, मिर्ज़ा उसमें जाके नहाता था और पूरा काला होके बाहर निकलता था, काले कपड़े काला मुंह। तो माँ कहती थी यार है कितना पागल है। अब आप सोचें किसी माँ का बेटा पखाने में नहा के आ रहा है और सरकंडे से चिड़ियाँ काट रहा है, राख रख के रोटी खा जाता है। ये चंद मिसालें, ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। तो माँ बड़ी परेशान हुई। वो आयमा की रहने वाली थी, ज़िला होशियारपुर का एक गांव है आयमा, वहाँ की। वहाँ एक दरगाह है। कहा जाता था कि जो कोई 10 बार मन्नत माने, यानी 10 चढ़ावे चढ़ाने की या 10 बार कुछ करने की, तो उसकी मुराद पूरी होती है। चिराग बीबी ने मिर्जे के लिए ये मुराद मांगी उस दरगाह पर कि जे दा दिमाग ठीक हो जाए ना, मैं तो 10 चढ़ावे चढ़ावा। नहीं, ये सच्ची कहानी है, बिल्कुल सच्ची है। अच्छा, ये कहाँ पे लिखी हुई है? सीरतुल मादी में लिखी हुई है। हेलो, जो मुझे वाक़यात मैंने सुनाए हैं ना, सफा याद है कोई इसका? हाँ मैं आपको निकाल दूंगा हवाला, लेकिन ये जो दरगाह पर मन्नत मानने का है ना, हाँ जी। इसका जिक्र वो नहीं करते, बल्कि ये लिखा हुआ है इनकी किताबों में कि ये दसवंदी के नाम से मशहूर था उन दिनों। और जब हमने तहकीक की तो हमें पता लग गया कि दसवंदी क्यों कहा जाता था। दसवंदी का मतलब है पंजाबी में जिस पर 10 बार मन्नत मानी गई, 10 बार कुछ मन्नत पूरा करने का माना गया। तो ये इनकी किताबों में लिखा है कि इसका नाम दसवंदी था, और कुछ लोग इसको सोंदी भी कहते थे। फिर दसवंदी इसलिए नाम पड़ गया कि जिसके बच्चे के बारे में ये मन्नत मानी जाती थी उसको वो दसवंदी कहना शुरू कर देते थे, ताकि भूल ना जाए कि बाकी 10 पूरी करनी है मन्नतें। आप समझ गए ना? तो वो तो नहीं की होनी उन्होंने पूरी? नहीं की होंगी, चिराग बीबी बड़ी यहो जई सी, लेकिन वो ठीक हुआ ही नहीं है। तो क्या? नहीं देखें, ठीक होना तो दूसरा मसला है ना, लेकिन अब चढ़ावे चढ़ाने से कौन ठीक होता है? आप मुझे ये बात बताएं। मेरी नज़र में तो ठीक करना तो खुदा ताला की तरफ से है, शफा मिन जानिब अल्लाह। अच्छा, जो इनके वालिदैन थे मिर्जा साहब के, जी साहब, ये क्या कहते हैं, इनकी हयात के अंदर इन्होंने ये हरकतें की थी कि फोत होने के बाद? की हयात में ही है ना, बच्चा था। देखें वालदा कब, आपको पता नहीं है वालदा कब फौत हुई? अच्छा। इनकी वालदा जो है ना इसकी, ये जब सियालकोट से वापस आया और उस वक़्त इसकी वालदा फौत हुई। ये चोरी करके, मतलब 27 साल का था हमारे मुताबिक, तो इसकी उम्र 27 साल थी, कादियानियों के मुताबिक 30 साल से भी ऊपर थी जब इसकी वालदा फौत हुई, चिराग बीबी। अब वालदा के फौत होने का ये बात है कि चिराग बीबी जो है उसने आखिरी 5 साल अपनी जिंदगी के मिर्जे की शक्ल तक नहीं देखी, ना ही उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं मिर्जे को देखना चाहती हूँ। उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक वजह ये थी कि ये बच्चा, उसे ये लड़का पसंद ही नहीं था। ये चोरी करके जब भागा, पेंशन 700 रुपया, और इसने शराब और तवाइफों पर उड़ाए लाहौर में,
तो और फिर डाका डाला चाय के काफिले पर इमाम दीन के साथ मिलकर, तो पुलिस इसकी तलाश में हो गई। तो इसका नाम नहाद बाप, उसका असली बाप नहीं था गुलाम मुर्तजा, आपको ये भी बात बता दूं। अच्छा, जो इसका बाप ये था जिसकी बीवी, यानी कि जो इनकी चिराग बीबी का खामद मिर्जे का बाप नहीं था। अच्छा, हाँ हाँ, उसका हमारे पास सबूत है जी, मैं आपको अभी बताता हूँ उसका भी। तो चूंकि ये गुलाम मुर्तजा को साफ पता था ये उसकी औलाद नहीं है, अब इसलिए गुलाम मुर्तजा इसे पसंद नहीं करता था, लेकिन जाहिर है कोई सोशल मजबूरी की वजह से उसने कहा जो हो गया हो जाए। ऐसा होता है बहुत सारे, और भी हमने वाकयात ऐसे देखे हैं। लेकिन उसने कहा कि अब है। लेकिन चिराग बीबी ने, आप देखें इसकी नबूवत की हालत ये है कि चिराग बीबी ने आखिरी 5 साल जिंदगी के जो थे इसकी शक्ल तक नहीं देखी, और मरते हुए कहा अल्लाह इनू कदी सुख ना दवे, पंजाबी में कि तुझे कभी जिंदगी में सुख ना मिले, और कभी सुख नहीं मिला। और ये इसकी नबूवत की हालत है जी। ये देखो नबी दी माँ है, अब देखे ना, तो नबी तो फिर अल्लाह का तो ना हुआ, ये तो जल्लाश का नबी हो गया ना, किसी खबीस का है, जिसकी माँ तक उससे नफरत करती है। और जब ये वापस कादियान आया तो इसके मुंह बोले बाप ने इसको बुलवाया, और उस वक्त इसकी माँ फौत भी हो चुकी थी और उसको दफनाया भी जा चुका था। ये है इसकी नबूवत की हालत जी। पता नहीं मर्ज़इयों का दिमाग कहाँ से खराब है। और वो जो इसका बाप है ना जी, मैं आपको वो बता दूं मुफ्त, इसी टिकटॉक पर मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है 8-9 मिनट की। उसका नाम है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का बाप कौन। कादियानी कहते हैं कि मिर्जा 1835 में पैदा हुआ, और इससे पहले कहते थे 1832 में हुआ। ये बशीरे ने कहा कि ये इनकी किताब सीरतुल महदी में लिखा है, मेरे पास हवाला मौजूद है। फिर एक शख्स था अब्दुल रहीम दर्द, वो 1914 से लेकर 1924 तक लंदन फजल मॉस्क है लंदन में, उसका इमाम भी रहा। उसने एक किताब लिखी द लाइफ ऑफ अहमद। उसके सफ़ा 50 पर वो लिखता है कि इससे एक बड़ा लड़का था चिराग बीबी का, जो इसका हाफ ब्रदर था, उसका नाम था गुलाम कादर, कि वो 1883 में 50 बरस की उम्र में फौत हो गया। आप 1883 में से 50 निकालें तो क्या आता है? 1833 आता है ना, सिंपल सा मैथ। इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मिर्जा कादियानी 1832 में पैदा हुआ। तो लोगों ने, उस वक्त कम्युनिकेशन कम थी ना, ऐसे फ्रॉड जो आराम से कर लेते थे, किसी ਨੂੰ की पता चलना है। अब अब्दुल रहीम दर्द की किताब तो पब्लिश हुई कई सालों बाद, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहना शुरू कर दिया। अब तो हमारे पास सबूत छपे हुए भी हैं। तो जिनको पता था ना, उन्होंने कहा ओए बशीरिया खबीसा होश कर, गुलाम कादर 50 साल की उम्र में 1883 में, वो तो 1833 में पैदा हुआ, और मिर्जा कहता मर गया कि मुझसे 8-9 साल बड़ा था उम्र में। मिर्जा ने लिखा हुआ है कि गुलाम कादर 8 या 9 बरस बड़ा था मुझसे। अब देखें कि अब वो तो 1833 में पैदा हुआ, आप मिर्जे को 1832 में पैदा कर दें तो आप उस फ्राडिया को क्या कहेंगे? फ्राडिया हो गया ना। बिल्कुल। तो उसके बाद इन्होंने उसको कहा नहीं जी 1837 कर दी इसकी तारीख, ये भी लिखी हुई। फिर 1836 कर दी। अब आजकल मिर्जाई कहते हैं मिर्जा 1835 में पैदा हुआ। बात ये है जी, अब इन किसी मिर्जाई से आप पूछ लें, जो जानने वाला मिर्जाई है ना, बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं हैं इन बातों को, ये भी मैं आपको बता दूं। जो जानने वाला कादियानी है, आप उससे पूछें, वो आपको बताएगा कि मिर्जा 1835 में पैदा हुआ। आप मुझे बताएं, आपको अपनी तारीख पैदाइश आती? बिल्कुल। अगर आप 5-6 किताबों में ये लिख दें कि मैं इस साल में पैदा हुआ, और मैं कहूं कि नहीं जी ये तो 5 साल पहले पैदा हुआ, आप मेरे बारे में क्या कहेंगे? कोई गलत बयानी कर रहे हैं। दिमाग खराब है ना, गलत बयान नहीं कर रहा, चिट्टा झूठ, मैं कहता काला झूठ बोल रहे। अब सुने जी, ये मिर्जाई आपको बताएगा कि ये 1835 में पैदा हुआ।
अब हवाले मैं बताता हूँ, आप नोट कर लें। शैतान, इसको ये रूहानी खजाइन कहते हैं, जिल्द नंबर 13 है, सफ़ा नंबर 177 है, ये उस वीडियो में भी लगे हुए हैं, ठीक आपको है। नज़र आएंगे सफ़े। किताबुल ब्रिया नाम है। मिर्ज़ा बकिया हाशिया में लिखता है, मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक्त में हुई है। मैं 1857 में 16 बरस का या 17वें बरस में था। आप 1857 से 16 निकालें तो कितने बचते हैं? 1841। हम्म 17 निकाल दें तो 1840। हम्म मिर्जा तारीख की सबसे अहम साल का हवाला दे रहा है और आगे लिखता है, और अभी रेशो बरदत का आगाज नहीं था, यानी मेरी दाढ़ी मूंछें नहीं आई थी। आप सोचें, आपको कोई शक हो रहा है कि मिर्जे ने गलत लिखी है अपनी तारीख पैदाइश, सन पैदाइश का? है आपको लगता है कि मिर्जे की ये तहरीर गलत है? वो कह रहा है कि मैं 16 या 17 का था। 1857 में, यानी 1840 या 41 में पैदा हुआ। ऊपर लिखता है कि मेरी पैदाइश 1839 या 1840 की है, सिखों के आखिरी दौर की। मैथ नहीं आता था, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा, यानी तो फिर दूसरी जगह तो उसे बदल कर लिखनी चाहिए ना। हम्म आप देखें इसी किताब में सफ़ा 192 पर वो दोबारा लिखता है, मेरी उम्र करीबन 34 या 35 बरस की होगी जब हजरत वालिद साहब का इंतकाल हुआ। इसका बाब जून 1876 उसकी कब्र पर लिखा हुआ। 1876 में से 35 निकालने कितने आते हैं? 1841। बिल्कुल। दूसरा हवाला दिया मैंने आपका क्या ख्याल है कि मिर्जे का दिमाग खराब? वो अपनी तारीख पैदाइश जानता था। वो वही साल बता रहा है, 40 या 41 बताएगा। आगे सुने, अल हकम अखबार है 31 जुलाई 1901 का। ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिर्जे को कत्ले अमद के मुकदमा में, जहां आपको बहैसियत मुल्जम पेश किया था, इल्जाम था इस पर कत्ल का, इसने मार्टिन क्लार्क को मारने के लिए अब्दुल हमीद नामी एक शख्स भेजा था। डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर जिला गुरदासपुर की अदालत में ये बयान दिया उसने। इस बयान सुने जी मिर्जे का, ये 31 जुलाई 1901 को दे रहा है। अल्लाह ताला हाजिर है, मैं सच कहूंगा, कसम उठा के कह रहे हैं, मेरी उम्र 60 साल के करीब है। 1901 में से 60 निकालें कितने आते हैं? 1841। मिर्जा मुसलसल कह रहा है कि मैं 1840 या 41 में पैदा हूं। कोई इतने ही दफा भी झूठ बोल सकता है या दिमाग खराब हो सकता है? वो तो अलग अलग बताएगा हर बार। बिल्कुल। मेरे पास ऐसे और भी हवाले हैं, लेकिन मैं एक आखिरी हवाला आपको बताता हूँ। ये है रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफ़ा 486, दरियाकुल कुलूब किताब का नाम है। कहता है मेरा तुआम पैदा, और सुने, कहता है और जनाने वाली दाई की तहरीरी शहादत मेरे पास मौजूद है। कहता है मैं दाई को लिखवा लिया सी, मैं कदों जमे। अच्छा है नहीं, मेरे लफ्ज नहीं है, मैं उसी के लफ्ज पढ़ रहा हूँ। कहता है और जनाने वाली दाई की तहरीरी शहादत मेरे पास मौजूद है। आपको शक रह जाता उसे नहीं पता थी अपना कब पैदा हुआ? नहीं, अब तो नहीं। अब तो जिस तरीके से जितनी वो मुसलसल बोल रहा है उसको अपनी पता था। तो ये 1835 क्यों कहते हैं? आपको हैरानी नहीं होती? वो इसकी पेशन को ही पूरी करने नहीं 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 जनाब, मैं आपको वजह, अब देखें इसी किताब में दरियाकुल कुलूब में इस लफ्ज से पहले जहां वो कहता है दाई को सर्टिफिकेट लिया, आगे लिखता है और मेरा तुआम पैदा होना और अव्वल लड़की और बाद में उसी हमल से मेरा पैदा होना तमाम गांव के, एक गांव नहीं तमाम गांव के बुजुर्ग साल लोगों को मालूम है। कहता जी दूर दूर तक के जो गांव है ना, कादियां के दूर दूर भी, उनको भी पता था कि मैं पैदा हो गया। अच्छा। आप सोचें क्यों? मैं वजह बताता हूं आपको। मिर्जा गुलाम मुर्तजा, जिसे मर्दई इसका बाप बताते हैं, वो सिख फौज का मुलाजिम था। अच्छा। 1818 से लेकर 1849 तक
जब सिखों का दौर खत्म हो गया तो उसकी नौकरी भी चली गई। 1836 में सिखों ने पेशावर पर कब्जा कर लिया, जो अफगानिस्तान का हिस्सा था उस वक्त। तो अफगानियों को बड़ा गुस्सा आया सिखों पर कि ताड़ी है जुर्रत। उन्होंने फैसला किया कि पंजाब पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेंगे। सिखों ने मांगी अंग्रेज़ों से मदद, तो अंग्रेज़ों ने हिसाब लगाया कि अफगानी की मदद करना इतना अच्छा नहीं, क्योंकि उनकी रेगुलर आर्मी नहीं है, ट्राइबल आर्मी है। इसलिए दल खालसा जो सिखों की फौज थी बड़ी मजबूत थी और उसका मुलाजिम था गुलाम मुर्तज़ा। उन्होंने फैसला किया इनका साथ देते हैं, तो एक जंग लड़ी गई जो 4 साल तक जारी रही। उसका नाम है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। यह सिखों की जंग थी। 1838 में शुरू हुई और 1842 में खत्म हुई। आप विकिपीडिया पर देख लें, 50 रेफरेंस भी नीचे लिखे हुए। ठीक है, तो अब दल खालसा 2.5 महीने के फासले पर जंग लड़ रहा है और ये उसका फौज में मुलाजिम है, तो क्या ये घर पर होगा? सही हो गया। ये था ही नहीं। 1838 से 1842 तक ये सिखों की फौज के साथ जंग में मसरूफ था। मिर्जा पैदा हुआ 1840-41 में। आप मुझे बताएं कि वो गुलाम मुर्तजा का लड़का हो सकता है? नहीं, सही सही नहीं है ही नहीं। हो अब सकता मैं है डॉक्टर साहब, हो सकता है उन्हें ईमेल कीती होवे उस जमाने च। नहीं वही तो मैं कहना है कि चिराग बीबी ने कित्थों डाउनलोड कीते बच्चे, शायद ईमेल तो नहीं आप देखें, मैं आपको आप उसमें ये सफ़े लगे हुए हैं विकिपीडिया के भी, रेफरेंस भी और मिर्जे के ये, अब वो वीडियो देख लें। अब इसका आप सोचेंगे कि ये तो मेरी तहकीक, इससे पहले मुझे एक दिन जिया भाई ने भी कहा था कि मैंने पहले नहीं सुना। तो जनाब मैं आपको डॉक्टर साहब माजरत चाहता हूँ, एक अजराह तफन्नन बात कर लूँ? हाँ करें। जैसे उसने 4 साल वहाँ था तो बाद में आया ना, मतलब ये बाद में पैदा हुआ है, तो कि इंडियन फिल्म का गाना भी है कि मुलाजम को कहता है क्या हुआ है जी मेरे घर बैठा आंदा, तू तो 5 साल हुए थे में, कहता नहीं जी मैंने चिट्ठी लिखी थी। तो उसके बाद फिर एक मुकेश का गाना भी है, हम दोनों मिल के कागज़ पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा, वो जवाब आया सी। हाँ नहीं बिल्कुल। आप देखें, अगर आप समझते हैं, ये तो मैं अपनी किताब लिख रहा था तो मुझे पता लगा तो मैं हैरान परेशान रह गया। अब आपको समझ आई ये 1835 से आगे जाते क्यों नहीं है? क्योंकि मिर्जा हरामदा साबित हो जाता है। तो ये 1835 किस तरह कहते हैं, ये इसकी दलील कहां से लाते हैं? वो भी दलील आपको मैं बताता हूँ, आप फिक्र ना, मेरे पास सारे जवाब हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पहला आदमी हूं जिसने डिस्कवर किया कि मिर्जा हरामी है। ना ना ना, ना। आप कौमी असम्बली 1974 की कार्रवाई खोलें, उसके सफ़ा नंबर 1231 खोलें। वहाँ पर मिर्ज़ा नासिर बयान दे रहा है कि अलेक्जेंडर डॉय ने 7 ख़त शामिल किए न्यूयॉर्क वर्ल्ड नामी जर्नल में। कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है कि अलेक्जेंडर डॉय कहता था कि मैं हराम की औलाद हूँ और मेरा बाप नामालूम है। ये मिर्ज़े के लफ्ज़ हैं कि अलेक्जेंडर डॉय मुझे कहता है मैं हराम की औलाद हूँ, मेरा बाप नामालूम है। कहता है ये उसका सबसे बड़ा गुनाह। तो इसको हराम का कहने वाले बहुत दुनिया थी जो जानती थी कि ये हराम की औलाद है। जैसे आपको पता लग गया, मुझे पता लग गया, और लोगों को भी पता था, और अलेक्जेंडर डोई के अलावा भी लोग इसको मशहूर था। और ये अब आपको इस फिक्रे का लफ्ज़ समझ आ जाएगा जो इससे ऊपर है कि जनाने वाली दाई की तहरीरी शहादत मेरे पास मौजूद है। ऊपर देखें, अब फिक्रा पढ़ें, और मेरा तवाम पैदा होना, और अव्वल लड़की और बाद में उसी हमल से मेरा पैदा होना तमाम गांवों के बुजुर्ग साल लोगों को मालूम है। उनका तो पैदा ही हरामदा होया। लोग कहते थे गुलाम मुर्तज़ा ते है नहीं, बच्चे कितों डाउनलोड कीते। शोहरत है कि बजाय शोहरत के नहीं बिल्कुल है। अब एक हरामी को आप नबी नबी कहते फिरे तो यार उसकी अकल पर भी अफसोस है और उसके पैदा होने पर भी अफसोस है। हाँ अब देखें 1835 का सबूत पेश करते हैं, सबूत सुन लें।
उन्हीं की किताबों से। अब मिर्जे ने क्या सबूत दिया? अपनी उम्र बताई बाप की वफात के वक्त, बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, ठीक है ना। कहा मैं सिखों के आखिरी दौर में पैदा हुआ। सिखों का दौर 1799 से लेकर 1849 तक का दौर है, और मिर्जा 4041 में पैदा हुआ, उसको आप आखिरी दौर भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा 1857 जो तारीख का सबसे अहम साल है, मेरी उम्र 16-17 साल थी, वो इसलिए कह रहा है कि इसका बाप और बड़ा भाई फौज में भर्ती हुआ अंग्रेजों की, चूंकि ये 18 से कम था इसलिए भर्ती नहीं हुआ। है ना, इंपॉर्टेंट है, आप इस गवाही को रिजेक्ट नहीं कर सकते। और फिर उसने कसम उठाकर 60 साल की उम्र में अदालत में गवाही दी कि मैं 1841 में पैदा हुआ, ठीक है कि नहीं। अब सुने जी 1835 की गवाही सुन लो मिर्जइयां दी। यार मिर्जई जो है ना बिल्कुल दूसरों का मजाक उड़ाते हैं या खुद भी पागल हैं। कहता है जिन लोगों को मिर्जा गुलाम कादियानी की सोबत का शर्फ हासिल है, उन्होंने तो कुछ और लिखा है, लानतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है उधर, इनमें से ऐसे बहुत असहाब मौजूद हैं जिन्होंने आपकी जुबान से बारहा सुना। आप अपनी उम्र के मुतल्लिक फरमाया करते थे कि जब हम पैदा हुए तो फागन का महीना था, जुम्मा का रोज था, पिछली रात का वक्त था और कमरी हिसाब से 14वीं रात थी। आपने सुनी है एविडेंस 1835 की? ये दोबारा थोड़ा ये कौन कहता था? ये मुझे थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मिस कर दिया। जी इन्होंने हवाला ये है सीरतुल महदी सफ़ा 820 हिस्सा सोम और रवायत का नंबर 965 है। ठीक है। ये अल फजल मोरखा 3 अगस्त 1937 में के एक मजमून में ये लफ्ज लिखे हुए हैं। कहता है कि आप क्या चीज, ये इसके अपने अल्फाज नहीं है, सीरतुल मेहंदी के अंदर इसका बेटा लिख रहा है। हाँ उसके नाम से, ठीक हो गया। और हवाला दे रहा है 3 अगस्त 1937 के अल फजल अखबार का। अच्छा ठीक हो गया। ठीक। कहता है जी सबूत देखो जी मिर्जा कदों जम्या। कहता है मिर्जा आपकी जुबान से बारहा सुना कि आप अपनी उम्र के मुतल्लिक फरमाया करते थे। अच्छा। जब हम पैदा हुए, यानी मिर्जा कह रहा है जब हम पैदा हुए तो फागन का महीना था, जुम्मे का रोज था, पिछली रात का वक्त था और कमरी हिसाब से चांद की 14वीं रात थी। कहता है इस हिसाब नाल दी उम्र बनी 1835। अब आप देखें मैंने आपको मिर्जे की लिखाई सुनाई ना, वो अपनी उम्र के मुताबिक के बारे में क्या कहता है। उसके मुकाबले में अगर ये एविडेंस मैं अदालत में दूं तो अदालत में चपेड़ मार के बाहर कर देगी, है कि नहीं। ठीक है बिल्कुल। ये है कादियानियत कि एक हरामी को हलाली साबित करने के लिए, यानी कि मिर्जे ने ये अल्फाज अपनी किसी, मैंने उसकी हर किताब तकरीबन अब 10 दफा तो पढ़ ही ली होगी, जितने मिर्जे की किताबें हैं मैंने बार बार पढ़ी हैं। किसी किताब में ये लफ्ज जहां मिर्जे ने लिखे हैं ले आओ तो मुंह मांगा इनाम ले जाओ, ऐसे ही लिखे हो, है ही कोई नहीं। यह है कादियानियत, झूठ का पलंदा। होता है कि आप देखें ये उस बंदे की तहरीर मान रहे हैं, उसके बेटे की, जो कहता है मैंने बारहा सुना है। नहीं नहीं, वो भी दूसरों के नाम पर कह रहा है भाई साहब, वो भी फ्रॉडिया जे। ये वही लौंडेबाज है जो गयूर पठान के साथ लौंडेबाजी करता था, और उसका गयूर पठान का बाप मिर्जा मसरूर जो इनका आजकल गदा खलीफा है, उसकी मां नासरा बेगम को 3 साल के लिए उसने दे दी, नासरा बेगम के बाप मुद्देजानी ने। यार ये खानदान, आपको मैं सच बताऊं, ये तो अब वक्त का मतलब जिया लगता है मुझे कि मैंने इनके बारे में इतनी तफसील से पढ़ लिया। ये आप कुछ मत पूछें, हरामियों के हरामी हैं ये। और उससे हम देखें एक चीज, एक ये लोग वैसे सीरतुल मेहंदी की बाकी बातें नहीं मानते, इनको कहेंगे ना वो जो अब्दुल्ला आथम वाले केस के अंदर देखिए बात ये है कि ये सब इनकी लिखी हुई है, मैंने थोड़ी लिखी है। सीरतुल मेहंदी का लिखने वाला, उसको ये कमरुल अनबिया कहते हैं, लानतुल काफरीन उसका नाम होना चाहिए, तो उसको पता नहीं क्या क्या। ये गूं को, मिर्जा कादियानी गूं का इंतहाई बदबूदार ढेर था। आपको मैं उसकी समरी सुना दूं जिंदगी की। शराबी, फीमी, भंगी,
चोर, डाकू, फ्राडिया, ना रोजा, ना नमाज, ना जुम्मा, ना हज, ना ज़कात, ना इत्तिकाफ, ना तस्बीह, ना जाए नमाज, ज़हनी मरीज, ना काबिल इलाज, बाप ना मालूम। ये है जी मिर्जे की समरी। इसका एक एक लफ्ज पर मैं बहुत सारे रेफरेंस दूंगा जी। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। देखें, मेरा कादियानियों से मुतालबा है कि मिर्जे 85 का किताबों को 10 सेकंड में पूरा किया। नहीं, ये उस सारे मिर्जे की जिंदगी का निचोड़ ये है। यही कह रहे हो ना कि 10 आपने इसकी 85 की कितने 85 किताबें कहते हैं ना, हाँ उसको हाँ, आपने 84 या 10 सेकंड में पूरा 85 किया। हैं। उसमें भी एक जो इन्होंने छापी है रूहानी ज़हन में, वो 84 हैं। 84 है। हाँ, एक और भी है। अब ये किस तरह तहरीर को, यानी 1835, यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि मिर्जा को क्या कहते हैं पता भाई नहीं था। 1835 ना कहें तो मिर्जा हरामी साबित हो जाता है ना। ਉਹ ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 1835 ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। और ये तो कमाल की बात है, ये आप मिर्जियों से पूछें, ये मिर्जे को कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। ओए खबीस थे बच्चे, तू 1840 नहीं जम्मिया, तू हरामी साबित हो जाएगा 1835 में। ऐसी ਚਲੋ रखनी है। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਾਮੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ, लेकिन मैं चाहता झूठ क्यों बोल रहे हैं, मिर्जा झूठ क्यों बोल रहे हैं ਅਸੀਂ। नहीं, हरामी तो है मिर्जा, लेकिन बात ये है कि ये आप मिर्जियों से पूछें कि यार ताड़ा नबी है ना, ये मिर्जई मिर्जे को झूठा कहते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये जो मिर्जियत कादियानी ग्रोह का जो अकीदा है, मिर्जा गुलाम कादियानी का अकीदा हरगिज नहीं है। ये मिर्जा महमूद जानी जो काना था, मैं किसी नफरत से नहीं कह रहा, वो जानी भी था और काना था, एक आंख उसकी शीशे की थी, और वो 8 साल तक अपना पखाना हाथ से उठा के जिस्म पर मलता था और खा भी लेता था। नहीं, उसको फालज हो गया था ना जी। और उसके बारे में उसके एक रिश्तेदार शफीक मिर्जा ने लिखा है किताब शहर सदूम में कि उसकी ये हालत थी, ला यमूतु फीहा वला याहया। ये सूरह ताहा में लिखा है जहन्नमियों के बारे में कि ना वो जिंदा में से होंगे ना ही मुर्दा होंगे। नहीं, देखें, जिस शख्स ने कादियानियत को गौर को पढ़ा नहीं है ना, उसको तो ये कहते हैं लो जी हम तो मुसलमान हैं, हम तो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम तो मुसलमान हो गए, साड़ी नमाज भी वही, रोज़ा भी वही, ईद भी वही, हम सब कुछ वही करते हैं, ये आके तुम देख लो, हम कैसे मुसलमान ना हुए। और आम कादियानी ऐसे ही समझता है। 90% कादियानी इसी धोखे में पड़े हुए हैं। ये तो हमने जब से उन्हें किताबें पढ़कर सुनानी शुरू की हैं इन और सोशल मीडिया आया है, कादियानियत की तो माँ मर गई है। इनकी तादाद 1998 में तकरीबन 1 मिलियन थी, मुझे पक्का पता है। इनका एक सारोगेट मार्कर है, इनका चंदा उस वक्त $98 मिलियन से ज्यादा था, मिर्जा ताहिर ने कहा। अच्छा, 2022 में इनका चंदा $39 मिलियन से कम है पूरी दुनिया का। और तादाद झूठ तो मैं कहना इतने झूठे हैं। मिर्जा कादियानी से 1905 में अंग्रेजों ने पूछा, ओए मिर्जा तेरे कितने मानने वाले हैं? उसने कहा जी 4-5 लाख इजी। अंग्रेजों ने कहा नहीं यार कितने ने? कहता इधर ही इंडिया में घूम फिर रहे। उन्होंने कहा कि तो बाहर शार तो नहीं ना? कहता 2-4 बार होंगे, अक्सर इंडिया में ही है। अब अंग्रेज को लगता था कि बात झूठ है। अब अंग्रेज को दिमाग का खराब थोड़ी था, हम जैसे लोगों को पता लग जाता। तो 1911 में सेंसस हुआ, मरज़ाई जमात ने सबको कहा, जोर लगा लगा के, चीख के, लाउड स्पीकर लगा के भाई बात यह है कि तुमने अहमदी मुसलमान लिखना है, सिर्फ मुसलमान नहीं लिखना। आपको पता है 1911 के सेंसस में कितने लोग निकले? 18,000। अच्छा। मिर्जा कादियानी उससे 6 साल पहले कह चुका था कि हमारे लोग 4 या 5 लाख हैं और 6 साल में तो 9-10 तो हो ही जाने चाहिए थे। झूठे। हाँ जी, 1974 में मिर्जा नासिर से पूछा याह्या बख्तियार ने कि भाई साहब तुम्हारी कितनी तादाद है पाकिस्तान? कहता कोई पता नहीं। हालत ये है कि इनकी तजनीद में 1 दिन का बच्चा भी शामिल होता है और उसका आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। वो लोकल जमात में जाता है, फिर मरकज में जाता है, और कोई कादियानी नहीं मानेगा कि जमात को पता नहीं कितने लोग हैं। उससे उसने 50 मरतबा पूछा, कह रहा हूँ मैं तो 10-12 मरतबा तो डेफिनेटली पूछा ना
کہ بھائی اوے مرزا ناصر کنے لوگ نے, کہندے کوئی پتہ نہیں. انہیں کہا کوئی تے حساب ہوئے. کہندا